Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताज़ा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, मार्केट मंत्रों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks in sync with Asian peers falling amid rising number of coronavirus cases. Sensex loses marginally by 143 points. Nifty slips of 45 points. And crude prices drop amid record single-day spike in COVID-19 infections in the US and concerns about economic recovery. कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच अन्य एशियाई बाजारों में मंदी के अनुरूप घरेलू शेयर बाजार भी नुकसान में रहे। सेंसेक्स 143 अंकों के सामान्य नुकसान पर हुआ बंद, निफ्टी 45 अंकों की गिरावट में रहा और अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में दैनिक स्तर पर रिकॉर्ड तेजी और आर्थिक सुधार को लेकर उत्पन्न चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई दर्ज। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वित्तीय स्टॉक्स में गिरावट और अन्य एशियाई शेयर बाजारों से नकारात्मक संकेत मिलने के बीच प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.4% की गिरावट आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.39% की मंदी से 143 अंक कम होकर 36,594 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.42% की गिरावट से 45 अंक कम होकर 10,768 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां गिरावट और भी तीव्र थी। मिड कैप सूचकांक 0.72% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.35% की गिरावट दर्ज हुई। Key equity benchmarks today dropped 0.4%, dragged by losses in financial stocks and negative cues from Asian peers. The 30-share index Sensex ended 143 points, 0.39% lower at 36,594. The NSE Nifty shed 45 points, 0.42% to close at 10,768. Broader indices at the BSE also declined. The mid-cap lost 0.72% and the small-cap logged loss of 0.35%. Axis Bank was the top loser in the Sensex pack, skidding over 3%, followed by IndusInd Bank, Titan, HDFC, ICICI Bank, ONGC and HDFC Bank. On the other hand, Reliance Industries, Sun Pharma, Hindustan Unilever, Bharti Airtel and TCS were among the gainers. According to traders, domestic benchmarks followed the negative trend in other Asian equities as concerns over a fresh spike in COVID-19 cases and its impact on economic recovery weighed on investor sentiment. The number of cases around the world linked to the disease has crossed 1.22 crore and the death toll has topped 5.54 lakh. In India, the number of infections has spiked to 7.93 lakh with 21,604 fatalities. Puneet, I hope you're still with us online. Yes, Arjun, very much. Puneet, how would you, what would be your opinion about the week's performance with the Nifty Bank, which went up by 2.5%, but it fell in daily trade today? There was profit booking here. So how would you assess the performance of banking and finance for this week? So Arjun, like you said, that if we look at this week as a whole, then the financial sector or the banking sector, the stocks have done very well. And Bank Nifty, during the week, went up by 2.5%, although it fell a little bit today, about 1%. But today we must remember that this week was the fourth week in a row when the markets have gone up. So, and this is the longest winning streak for the Nifty in the last 6 months. So since December, this is the longest single phase when for 4 weeks the Nifty has continued to rise. And in this rise that we have seen in these 4 weeks, banking stocks, the financial sector stocks were in the forefront, along with auto stocks and metal stocks. And if you look at the markets today, I think there was profit booking because all these sectors, autos, metals and financial sector stocks fell marginally today.
So I think today was more of a day of consolidation and profit booking rather than, I would say, a trend reversal. So my own sense is that we are still on solid grounds. But of course there is some consolidation, there's some profit booking taking place right now. पुनीत, जैसा आपने कहा कि 4 दिनों से लगातार साप्ताहिक स्तर पर तेज़ी है बाज़ार में, और एक और जो फीचर उभर के आ रहा है वो ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम चारों सप्ताह को देखें तो आउट परफॉर्मेंस है ओवरऑल कंपेयर टू लार्ज कैप. सो आपको लगता है ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद रैली अब ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हो रही है, और क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है? सुनो, बिल्कुल. यदि हम इनफैक्ट अगर इस रैली को हम देखें, यदि हम मार्च 25 को जब मार्केट का बॉटम बना था, 7,500 निफ्टी बना था, और वहां से करीब करीब हम देख रहे हैं कि 40% निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर जो उछाल आया है, उस दौरान जो लार्ज कैप्स उनमें तो गेन हुई ही है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स को यदि देखें तो वहां पर उस 50% से ज्यादा गेन है. और इस सप्ताह भी यदि हम देखें जो पास वीक था, उसमें भी जो लार्जेस्ट गेनर था वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है. बेसिकली मैं ये कहूंगा कि जो पार्टिसिपेशन है, रिटेल पार्टिसिपेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस रैली में. सरप्राइज, नोबडी एक्सपेक्टेड कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, पर इट हैज बीन अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, और खासतौर से जो विस्तारित बाजार है, जो ब्रॉडर मार्केट है, जो स्मॉल कैप्स है, मिड कैप्स है, जो बहुत सस्ते दामों पर मिल रहे थे, उसमें इन्वेस्ट किया. तो डेफिनेटली यू आर राइट, दिस हैज बीन अ वेरी ब्रॉड बेस्ड रैली, which is quite a surprise actually. Puneet, last week I remember you spoke about how volatility in the market has come down, and the leading indicator being VIX. We have seen that the metal sector, there is always volatility, prices going up and down, and the Nifty Metal Index rallied 3.5% for the week. We also have a story on SAIL, Steel Authority of India Limited, where the June sales data has been positive, especially because of a growth in exports. What would you advise investors who look at the metal index as something that they can speculate on? So last week, like you said, we spoke about the volatility index or the VIX, which is also called the so-called fear index. Basically, it means that if VIX is high, if VIX index is high, then investors are more fearful. They expect the markets to fall very sharply, and they are afraid of the market movements. And as the VIX index keeps coming down, the markets are expected to become more stable, and in fact, investors are less fearful. So right now, the VIX, in fact, in today's trade closed at 25, which I would say is the lowest level in the last about 4-5 months, which means that investors right now are full of the market. They have more confidence that the markets will remain in a narrow range and they will not fall very sharply. That is what the VIX is suggesting right now. Having said that, metal index has traditionally been, because it is linked to the commodity prices, and commodity prices are also very volatile around the world. So metals index, being commodity prices, has been very volatile. But what we have seen is, again, in the last 3-4 weeks, metal index has been the leading gainer among all the Nifty sector indices. And therefore, I think there has been some profit. If we look at this week, it was among the top 3 gainers in the Nifty. पुनीत, अगर हम रिजल्ट सीजन की बात करें तो कल टीसीएस के रिजल्ट्स आए. कैसे आप आंकेंगे टीसीएस के रिजल्ट्स को, और ओवरऑल आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिजल्ट सीजन से? क्या लगता है आपको, कोविड क्राइसिस के बावजूद कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, जो टीसीएस के कल रिजल्ट आए उसमें हालांकि उम्मीद से थोड़े से वो रिजल्ट्स कम थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कंजर्वेटिव एक अप्रोच रखी है, और टीसीएस ने उनकी जो डील विंस यानी जो नए क्लाइंट्स उन्होंने लिए वो बहुत अच्छे नंबर्स आए. तो मुझे लगता है कि हालांकि मार्च का, और ये नंबर्स मार्च क्वार्टर के थे, अभी हम जून क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे, जून क्वार्टर के नंबर थे जो कि जिसमें बहुत ज्यादा लॉकडाउन का इम्पैक्ट था. जैसे जैसे हम अगला जो क्वार्टर है, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, मुझे लगता है कि वो रिजल्ट हमको बेटर एक पिक्चर बताएंगे. लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, मुझे लगता है आईटी सेक्टर स्टॉक्स विल रिमेन डिफेंसिव स्टॉक्स. वहां कोई बहुत गिरावट हम नहीं देखेंगे. हालांकि नैस्डैक जो है यूएस में भी, आप
उसका जिक्र करेंगी। नैस्डैक जो है वो रिकॉर्ड हाई पर, ऑल टाइम हाई पर नैस्डैक है, और जो बड़े स्टॉक्स हैं, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल है, ये सब अपने लाइफ टाइम हाई पर वहां चल रहे हैं। तो आईटी सेक्टर स्टॉक्स को या टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टॉक्स को दुनिया भर में काफी सपोर्ट मिल रहा है इन्वेस्टर्स का, और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर stocks will remain bullish in the medium to long term. Puneet, we discussed about profit taking in the banking and finance sector, but if you look at PSU banks, they have improved on their earning results. But Punjab National Bank has shed over 5%. The lender declared 3,600 crore rupees exposure to DHFL. One expected that this type of news was already factored in when pricing the stock. What do you see? Are there any further surprises in the PSU banking index? Like you said, this is so we know that this is. पुनीत, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लें, क्योंकि बीच बीच में आपकी अब कनेक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। अच्छा, आई होप इट इज बेटर नाउ। हाँ जी, आप क्लियर है। तो देखिए, जो डीएचएफएल का एक्सपोजर था ये ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर था, और लेकिन जब आप एक अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करते हैं तो बैंक को 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। करीब करीब 3,600 करोड़ का ये अकाउंट है पीएनबी का, उसमें से उन्होंने 1,200 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग कर चुके हैं। तो अब जो 2,400 करोड़ रुपया जो बचा है उसकी प्रोविजनिंग उनको अगले 4 क्वार्टर्स में करनी पड़ेगी। तो टू सम एक्सटेंट जो आने वाला एक वर्ष है उसमें 2,400 करोड़ की प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा पीएनबी को करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमने ये गिरावट देखी है। पर मुझे लगता है कोई खास बात नहीं है, ये एक नोन फैक्ट था, और एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग जो है उससे बेहतर रहता है, उसकी बैलेंस शीट और बेटर होती है। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक का, अगेन माय ओन फीलिंग इज कि जो वर्स्ट है दैट इज बिहाइंड अस। अब जब जून क्वार्टर के हम रिजल्ट्स देखेंगे जो आएंगे वो बेहतर होंगे, और उसके बाद हर क्वार्टर में हम धीरे धीरे बेहतरी देखेंगे। और अगर आप उनके शेयर प्राइस को भी देखें तो वो भी नीचे से करीब करीब 30-40% उनमें सभी में एक उछाल आया है, एक इंप्रूवमेंट हुई है। तो मार्केट इज टेलिंग अस दैट दीज नंबर्स विल इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। पुनीत, अगर हम बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बात करें तो काफ़ी सारे बैंक्स इंक्लूडिंग पीएनबी एंड कई प्रमुख जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं वो इक्विटी मार्केट से मनी पैसा जुटाने वाले हैं, इश्यूज लाने वाले हैं। इनके प्रति आपका क्या रुख है? आपको क्या लगता है कि ये कितने सक्सेसफुल होंगे, और इससे कितनी एक कह सकते हैं कि लिक्विडिटी जो छोटे बैंक्स हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी जुटानी? देखिए, जो काफी जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं, यदि हम अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने रेज करी थी इक्विटी, येस बैंक का प्रपोजल आया है, आईसीआईसीआई बैंक ने भी प्रपोजल अप्रूव किया 15,000 करोड़ रुपया इक्विटी रेज करने के लिए। तो करीब करीब सभी बैंक जो है वो पैसा या इक्विटी रेज करना चाहते हैं, बिकॉज वो अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इवन पब्लिक सेक्टर बैंक, यदि हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो वहां भी उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए इक्विटी रेज करने का प्रपोजल पास किया है। तो मुझे लगता है कि सभी बैंक जो हैं वो अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त बैंक्स की जो जिसे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट मापदंड है बैंक्स की बैलेंस शीट को आंकने के लिए, तो जो मार्च क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 13 से 15% है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि जो बेसल 3 जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक उनको 9% से 10% कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए। उनकी कैपिटल एडिक्वेसी ऑलरेडी उससे 1.5 गुना है। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है बैंक्स के ऊपर कि उनको वो कैपिटल रेज करना पड़े, पर डेफिनेटली बैंक्स चाहते हैं, और बैंक्स के पास सरप्लस लिक्विडिटी है, डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है बैंक्स के पास। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर है बैंक्स के ऊपर इक्विटी रेज करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली विद अ लॉन्ग टर्म व्यू इन माइंड ये चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटल पोजीशन को और इंप्रूव करे। बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन इन अ हरी। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनको कोई जल्दी नहीं है पैसा रेज करने की। दे विल टेक देयर टाइम अंटिल द प्राइसेस इंप्रूव, और ऊंचे भाव पर ही वो शायद पैसा रेज करना चाहेंगे। Puneet, we have seen that life insurance companies are doing quite well in the stock market because of an improvement in premium collections, and along with this rise in this particular space, we're also seeing stock specific action in the FMCG sector as well. What are the reasons? So both life insurance sector and FMCG that you mentioned, they are completely, I would say, unaffected by the COVID crisis. In fact, FMCG sales have gone up
during this period of lockdown, because most of the people were consuming and focusing on consumption, goods of daily consumption. At the same time, life insurance companies and general insurance companies have also seen an increase in premium because people have gone for more insurance cover on health in terms of covering their illnesses. So clearly, these two sectors have not been affected negatively. In fact, they have gained. On top of it, we have seen a stock like SBI Life and HDFC Life, they're being included in mainline indices. So clearly, investor interest in these sectors have gone up. And of course, we have seen, therefore, the prices also move up sharply along with other stocks. But definitely, the earnings in FMCG as well as in life insurance sector, they appear to be quite robust. And I don't think they'll be affected by the ongoing pandemic fears. पुनीत, ऑटो क्षेत्र से बहुत ही कह सकते हैं कि रोचक खबर है कि जो वहाँ पे डिमांड है वो तो प्री कोविड लेवल्स के 85% तक बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 45 से 50% तक ही बढ़ी है प्री कोविड लेवल्स के, अगर उसे हम कंपेयर करें। सो सप्लाई शॉर्टफॉल की वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आपको लगता है कि इस तरह का जो एक डाइकोटॉमी है कि आपका डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, वो और सेक्टर्स में भी उभर सकता है? क्या आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी काफ़ी बाधाएं हैं लॉकडाउन खुलने के बाद? बिल्कुल सुनो, देखिए ये बात इनफैक्ट मारुति के जो चेयरमैन है श्री आशी भार्गव, उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में कही थी कि हमारे लिए डिमांड उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा सप्लाई चेन डिसरप्शन है, क्योंकि जो उनका जो सप्लाई चेन है लंबा होता है। एंसिलरी यूनिट्स को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने पड़ते हैं, उसके बाद एंसिलरी यूनिट्स को, वो काफी लंबी चेन होती है सप्लाई, जो कंपोनेंट्स की होती है, और फिर वो असेंबल होते हैं ऑटोमोबाइल प्लांट्स में। तो यदि सप्लाई चेन डिसरप्शन है, उसमें काफी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, तो काफी ये कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन होती है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डिमांड है वो रूरल सेक्टर से बहुत अच्छी आ रही है। तो यदि हम टू व्हीलर्स की बात करें, ट्रैक्टर्स की बात करें, ऑफ द रोड व्हीकल्स की बात करें, तो वहां पर बहुत रोबस्ट डिमांड है। बल्कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड डिमांड है इस वक्त रूरल सेक्टर से। तो क्लियरली डिमांड इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम फॉर ऑटो सेक्टर जितना सप्लाई चेन इश्यूज थे। लेकिन मुझे देखिए, ये जो बात है वो मई और जून के महीने की है, उसके बाद सप्लाई चेन बहुत इंप्रूव हो गई है क्योंकि अनलॉक काफी इकोनॉमी हो गई है। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स थी सप्लाई की वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, एंड मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल प्लांट्स आर नाउ ऑपरेटिंग विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि आने वाले जो नंबर्स आएंगे, जून के आएंगे, जुलाई के आएंगे, वो काफी बेहतर नंबर्स होंगे। और बस एक लास्ट क्वेश्चन, जून में एसआईपी के जो फ्लोज हैं वो 8,000 करोड़ के जो एक उनका लेवल मेंटेन हुआ है काफ़ी 1.5 वर्ष से, उससे नीचे आ गए हैं। मंथली फ्लो 4 वर्षों का लोएस्ट लेवल आया है। सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एसआईपी में पैसा डाल रहे थे लोग एक विश्वास के साथ कि ये ओवर लॉन्ग टर्म बढ़ेगा, वहाँ कुछ भरोसा कम हुआ है? सुन, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के फ्लोज जो हैं वो जून के महीने में काफी नीचे दिखाए गए, काफी नीचे आए, कहीं 95% फॉल इन म्यूचुअल फंड फ्लोज रहा। लेकिन यदि आप उसको इंटरनल एनालिसिस करें तो एसआईपी में जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन एसआईपी के जो फॉल है वो बहुत कम रहा। मैं ये कहूंगा कि वो 8,000 करोड़ का जो एक करीब एक मंथली फिगर थी, वो घट करके करीब 7,000 करोड़ रुपए का वहां पर मंथली इनफ्लो रहा। लेकिन बाकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी वहां से हमने आउटफ्लो देखा था। तो नेट फिगर्स जो आई वो काफी नीचे दिखाई गई, लेकिन उसमें एसआईपी की जो हानि थी वो बहुत कम थी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो इन्वेस्टर्स एसआईपीज को अपने मेंटेन करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, थोड़ा अर्निंग्स कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चाहे सैलरीड एम्प्लॉयज हो, चाहे व्यावसायिक लोग हो, तो जैसे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एसआईपीज आई एक्सपेक्ट कि वो जल्दी ही अपने 8,000 या उससे ज्यादा के जो फ्लो है वो रिस्टोर हो जाएगा। जो दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं या जो वन टाइम इन्वेस्टर्स हैं, उनको शायद थोड़ा समय लगेगा स्टॉक में वापस आने में, पर मुझे ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में एसआईपी फ्लोज
will come back to about 8,000 crore per month. पुनीत, आपसे अनुरोध है आप हमारे साथ बने रहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नज़र डाल के इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैश्विक शेयर बाजारों और तेल के मूल्यों में आज कमजोरी का रुख रहा। अमेरिका के कई राज्यों में कोविड के नए मामले रिकॉर्ड स्तर पर रहने से ये चिंताएं पैदा हो गईं कि अतिरिक्त लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आर्थिक सुधार की गति तेज रहने की संभावना कम हो गई। दूसरी तिमाही के लिए जारी होने वाले कंपनी परिणामों को लेकर अनुमान है कि यूरोप और अमेरिका में ये परिणाम 2008-9 के वित्तीय संकट के बाद के अपने सबसे निराशाजनक स्तर पर होंगे। इन चिंताओं के चलते निवेशक अमेरिकी ट्रेजरीज और येन जैसे सुरक्षित निवेशों की तरफ आकर्षित हो गए। एशियाई बाजारों में गिरावट, चीन के बाजारों में 8 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला थमने और निवेशकों में कोरोना वायरस के नए संक्रमण को लेकर चिंता उभरने के बीच आई। कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने इस सप्ताह दैनिक संक्रमण में वृद्धि की जानकारी दी। विश्लेषकों के अनुसार संक्रमण में ताज़ा वृद्धि को रोकने के लिए नए नियंत्रणों की संभावना का बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% लुढ़क गया और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.8% की गिरावट दर्ज हुई। जापान का निक्केई 1.1% गिरकर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% के नुकसान में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% गिरकर बंद हुआ। हालांकि यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताज़ा समाचार मिलने तक यहां तेजी का रुख था। लंदन का फुट्सी 0.6% की बढ़त पर था। फ्रांस का कैक 0.7% की वृद्धि में था और जर्मनी के डैक्स में 0.8% की तेजी थी। Puneet, briefly, U.S. Treasuries, debt securities are seen as a safe haven traditionally. We are also seeing purchase of the yen as a safe haven. Why? See, traditionally, we have seen yen, of course, Japan is a huge economy, which is very strong per capita income and very robust economy. So, therefore, yen has always been a safe haven, even vis-a-vis the US dollar. So, most of the people invest in US dollar, but US dollar is a very volatile kind of a currency. It moves very sharply. And yen, we have seen, because of very low interest rates in Japan, we have seen yen as a very stable currency. So, ultimately, the carry trade between dollar takes place only vis-a-vis yen. So that's been the traditional thing. However, we have seen US Treasuries have had a huge run-up. A lot of people have gone and bought US Treasuries, and the interest rates, therefore the yields on Treasuries came down significantly. I think there is profit booking happening there also. Although the yields are about 0.6 to 0.7% right now, but so there is not much scope for the bonds to really go up in USA. I don't think they're going into negative territory. So my own sense is that people are booking profit in US Treasuries and again moving to a safer place, which is in their view, which is yen. And I think that is one of the reasons why we have seen these kind of moves in the treasury market and the currency market. Well, let's have a look at the US market now. The S&P 500 and Dow dropped yesterday as investors worried about another round of business shutdowns to contain a surge in coronavirus cases, and they began to shift their focus to earnings. The US saw more than 60,000 new COVID-19 infections on Wednesday, setting a single-day global record, while Florida and Texas reported a record one-day increase in deaths. The Dow Jones declined 1.4% and the S&P 500 lost 0.6% and the Nasdaq Composite fell 0.5%. Puneet, again, briefly, the US market with the COVID-19 infections going up and the elections, is it going to remain volatile? Briefly. Absolutely. I think US markets are going to have a very roller coaster kind of a play for the next 4-5 months because of the interplay of COVID fears, economy and elections. So it's a very heady mix. So I think we need to really closely watch US markets, but they're going to be very volatile, very news driven, I would say. So they're going to keep us all on the hot seat really. और अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे कमजोर होकर 75 रुपये 20 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। रुपये में गिरावट शेयर बाजार में मंदी के अनुरूप आई। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंताओं के बीच निवेशक अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों से दूर रहे। इसके अलावा प्रमुख स्पर्धात्मक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती से भी रुपये पर दबाव पड़ा। ब्रीफली पुनीत, हमने रिसेंटली सुना था कि आरबीआई कोशिश कर रही है कि रुपया ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो। सो कौन सा लेवल आपको लगता है रुपया का जो हमारे इकोनॉमी के लिए ऑप्टिमम होगा?
देखिए, आरबीआई का कोई टारगेट रेट नहीं है, लेकिन आरबीआई चाहती है कि रुपए जो है वो स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा वोलेटाइल ना हो। और हमने जो देखा है, यदि आप पिछले 3 महीने का डेटा देखें तो आरबीआई ने $30 बिलियन से ज्यादा की बाइंग करी डॉलर्स की, यानी उन्होंने डॉलर को सपोर्ट किया vis-a-vis रुपी, विच मीन्स कि आरबीआई का जो मन है वो रुपए को $75 पर डॉलर के आसपास रखने का है। कोई प्राइस वो टारगेट नहीं करते, लेकिन रेंज रखते हैं। जो 75 और 76 का मेरा अनुमान है कि हम देखेंगे कि 75 और 76 के बीच में रुपया vis-a-vis डॉलर स्टेबल रहेगा काफी दिन तक। In more news, SAIL has achieved the highest ever June month sales during the last month under the Atmanirbhar Bharat project. The domestic and export sales stood at 12.77 lakh tons, which is a jump of more than 18% over the corresponding period last year. Steel Minister Dharmendra Pradhan said record June sales and exports by SAIL is indicative of the buoyancy and sharp recovery the economy is witnessing. Moving on to the oil market now. Oil prices today dropped and were headed for weekly declines as inventories rose and record-breaking new coronavirus cases in the US stoked concern about the pace of economic recovery and fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $41.90 per barrel, while WTI crude prices were around $39.10 per barrel. Puneet, I hope you're still with us. Yes, Arjun. Puneet, we know that oil producing countries which have been traditionally from the Middle East and Russia have been topped by the US because of the shale oil production. With what's going on in the economy right now, has their production been affected, and how important is it in terms of setting prices globally? So, Arjun, oil markets are right now not in the normal mode, because we have seen a record production cut of more than 10-12 million barrels per day by the oil producers OPEC and Russia together, which is exceptional, which cannot continue. So I'm expecting oil production to come back on stream sooner or later. It could be next month, it could be after 3 months, but they have to increase production of oil. So these prices, which are at $40 per barrel, I think they are artificially boosted. They will have to come down. My own sense is that we will see oil stabilize between $25 and $30 range, because that is where the equilibrium of demand and supply is. And this artificial cuts that they've done of 10-12 million barrels per day, I don't think they can be sustained, because US will keep pushing pressure on them, because shale oil will keep, if they keep prices high, artificially high, then the production will keep going up in the US. So my own sense is that these prices will come down even as they gradually ramp up production in OPEC and Russia. पूरी इससे पिछली स्टोरी पर अगर हम जाएं तो ईयर ऑन ईयर जून में जो 18% उछाल आया है स्टील की प्रोडक्शन में, इसको आप कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं, ये इस बैकड्रॉप में कि हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक मुहिम कर रहे हैं? देखिए अर्चुनो, हम ना स्टील बहुत इंपोर्ट भी करते हैं, स्पेशल ग्रेड स्टील इंपोर्ट करते हैं, और स्टील की बहुत डंपिंग भारत में होती थी, जिसका काफी स्टील कंपनीज कंप्लेन भी करती थी। तो यदि आप जून क्वार्टर की बात करें तो आप देखेंगे कि इंपोर्ट्स उस दौरान बिल्कुल नहीं हो रहे थे, बिकॉज एक्टिविटी कम थी, लॉकडाउन से। तो वो सारी जो डिमांड थी, जो डोमेस्टिक डिमांड थी, वो सारी डोमेस्टिक कंपनीज ने मीट करी। इसी वजह से हमने देखा मेटल कंपनीज के शेयर्स भी बढ़े, मेटल कंपनीज की डिमांड भी बढ़ी। अब ये हमें देखना है कि आने वाले समय में जब नॉर्मलाइजेशन होगा, तब क्या ये इंपोर्ट्स उसी प्रकार से कम रहेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्शन गेन जो है ये सस्टेनेबल होंगे। अदरवाइज वी कुड फेस कंपटीशन अगेन फ्रॉम इंपोर्ट्स। और ब्रीफली, डीकपलिंग फ्रॉम चाइना ये कितना संभव है हमारी इकोनॉमी के लिए? देखिए, डीकपलिंग फ्रॉम चाइना एक अचानक नहीं हो सकता, एक लॉन्ग टर्म को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, बिकॉज चाइना से काफी सप्लाई चेन जुड़ी हुई है। यदि हम चाइना से कंप्लीटली डीकपल करेंगे तो हमारे जो आगे की प्रोडक्शन लाइन्स है वो बंद हो जाएंगी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑलरेडी हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि सप्लाई चेन डिसरप्शन से प्रोडक्शन कम हो गया। तो आज अगर डीकपल करना है भारत को, तो उनको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और मुझे लगता है उसके लिए हमको 1 या 2 वर्ष लगेंगे। एज ए डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी इट इज गुड, लेकिन हम सोचे कल सुबह हम प्रोडक्शन इंपोर्ट्स बंद कर दें चाइना से, उसका बहुत फायदा नहीं होगा, उसका काफी नुकसान भी हो सकता है हमें। और अब चलते चलते सोने पर एक नज़र। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 49,969 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,800 प्रति आउंस पर, और चांदी बिना किसी खास बदलाव के $18.60 प्रति आउंस पर थी। क्या कहेंगे आप, सोने में ये तेजी बनी रहेगी या सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट? देखिए, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट तो सोना है, लेकिन
तेजी बनी रहेगी इसी प्रकार से, ये मुझे कहना मुश्किल है, क्योंकि इस वर्ष यदि हम देखें तो 16-25% उसका दाम बढ़ चुके हैं। और मेरा अपना अनुमान है कि ये 49-50,000 जी। प्लस माइनस कपल ऑफ थाउजेंड, दैट शुड बी स्टेबल। पुनीत जी, समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सर। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks in sync with the Asian peers falling amid rising number of coronavirus cases. Sensex loses marginally by 143 points. Nifty slips at 45 points. And crude prices drop amid record single-day spike in COVID-19 infections in the US and concerns about economic recovery. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.